सीधे आपको हम विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको सुनना चाहिए। Terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो देखिए, जो बड़ी खबर है वो इस वक्त सामने आ रही है निकल करके। उसमें सिंधु जल समझौता जो है वो पाकिस्तान के साथ था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने पर जो है अब वो पूरी तरीके से रोक है, क्योंकि जो वीजा जिनको दिया गया था वो रद्द कर दिए गए हैं और साथ ही साथ 48 घंटे का वक्त उन लोगों को दिया गया है जो कि इस वक्त भारत में मौजूद हैं, वीजा लेकर के यहां पर आए हुए थे। और एक तरीके से ये बड़े और कड़े फैसले कूटनीतिक तौर पर भारत की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंधु नदी समझौता, जिसको अब रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ
जो उच्चायोग में दोनों तरफ यानी भारत और पाकिस्तान में संख्या होती है 55 की, उसको घटा करके अब 30 कर दिया गया है, यानी 25 लोगों की वापसी हो रही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्टाफ हैं यानी कि नेवी, डिफेंस और एयर के जो स्टाफ वहां पर सर्विसेज में होते हैं, एम्बेसीज में, उनको भी वापस बुलाया भी जा रहा है और पाकिस्तान के जो सर्विस के लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। आज ये सबसे बड़ा कूटनीतिक धमाका करने वाली खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। अब से ठीक 35 मिनट पहले सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक खत्म हुई और दिल्ली में हुई इस बैठक पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नजर थी। और जो अब सामने आई हैं तस्वीरें, उसमें पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत ने 2-3 जो महत्वपूर्ण फैसले थे वो लिए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एक तो जो पाकिस्तान से नागरिक यहां पर आए हुए थे उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें वापस 48 घंटे में पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। अटारी बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ ये आने जाने का बल्कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, ये उसको बंद कर दिया गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो हम बता रहे हैं बार बार, सिंधु नदी जो समझौता था, जल समझौता था, उसको भी रद्द कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश में सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी है। सीसीएस भारत सरकार की सभी 8 कैबिनेट कमेटियों में से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी मानी जाती है। इस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले सीसीएस लेती है। सीसीएस के फैसलों के बाद बिना देरी किए तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। और जो हम बता रहे हैं, जो बातें सामने आई है निकल करके कि पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा और इसके अलावा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी जल जो समझौता था उसको भी रद्द कर दिया गया है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, सबसे पहले ये जो फैसले लिए गए हैं इसका सबसे पहले अगर हम असर जानना चाहें, समझना चाहें, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? देखिए, जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो पाकिस्तान पर जो असर पड़ेगा उसमें सबसे पहले तो यह है कि जो पाकिस्तानी जो नेशनलिस्ट हैं, भारत में जो वीज़ा लेकर आए थे उनको वीज़ा रद्द किया गया है। अगले 48 घंटे में उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। पाकिस्तान हाई कमिश्नर को यहाँ कहा गया है कि आप यहाँ से 1 सप्ताह के अंदर सभी पाक राजनयिक जो हैं भारत छोड़ के जाएँ और पाक जो हाई कमिश्नर है उसको बंद किया जाएगा। तो डिप्लोमेटिक स्तर पर सबसे बड़ा फैसला है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को यहाँ से बंद किया जाएगा। जो इंडो और दूसरी भारत सिंधु नदी जो समझौता है उस पर भी विराम लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला है राहुल। जो अभी सीसीएस के फैसले जो मीटिंग हुई है, 2.5 घंटे जो बैठक हुई है और अमित शाह और अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 20 मिनट की अलग से बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया। और एक बात और है, जो सीसीएस में जो कार्रवाई की जाती है, चाहे आतंकवादियों के खिलाफ हो या सैन्य कार्रवाई हो, उसका खुलासा नहीं होता है। क्योंकि निश्चित तौर पर वो होना भी नहीं चाहिए रविंद्र, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे प्लान्स जरूर बताएंगे अपने डीएनए के दर्शकों को कि क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, ये पूरी जानकारी देने के लिए।